سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ قاہرہ کی سمت 6 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو بہ پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ تھی جا رہا تھا۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کسی نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا، لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکی دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال نے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں، تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو، سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہو کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو، اور وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہیں، صرف صلیب ہے جس کے متعلق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں، انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیبیوں کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کے بنیادی اصول سمجھتی رہی۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ کیا تم اپنے ایک سالار رجب کو جانتے ہو؟ لڑکی نے جواب پوچھا، وہ خلیفہ کے محافظ دستوں کا سالار ہے۔ احمد کمال نے کہا، وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا، اب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو اور بھاگے تو تیر مارو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے، وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں، رجب وہاں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ فوج کا بھگوڑا ہے، ہم 3 لڑکیاں اسی کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئی ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی۔
किस तरह हबशियों ने इनमें से 2 लड़कियों को देवता के नाम पर ज़िबा करना चाहा, रजब इन्हें बचा न सका। किस तरह वो वहाँ से भागीं और रास्ते में 2 लड़कियाँ किस तरह आंधी में मारी गई थीं। इसने कहा, मैं अपने आप को शहजादी समझती थी। मैंने बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी की है। मैंने कभी सोचा भी न था कि खुदा भी है और मौत भी है। मुझे गुनाहों में डुबोया गया और मैं डूबती चली गई। अजीब लज्जत थी इस डूबने में, मगर मुझे वो मगरमच्छ दिखाए गए जिनके आगे ज़िबा की ही लड़कियों के जिस्म फेंके जाते हैं। मगरमच्छ पानी के किनारे सोए हुए थे। इनके भुद्दे और मकरवा जिस्म देखकर मैं कांप गई। मेरे जिस्म को जिसने बादशाहों के सर झुकाए थे, इन मगरमच्छों की खुराक बनाना चाहते थे। मैंने वो बदसूरत स्याह काले हबशी देखे जो मेरा सर मेरे जिस्म से अलग करने के लिए आ गए थे। मौत के परों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मेरी रग रग बेदार हो गई। मेरे अंदर से मुझे आवाज़ सुनाई दी, अपने हुस्न और इतने दिल नशीन जिस्म का अंजाम देख हम जान की बाजी लगाकर अपने घर से निकली थी। हमें ये कहकर रजब के साथ फ़लस्तीन से भेजा गया था कि ये शख्स हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन इसने मेरे साथ दस्तदराजी की। हम वहाँ से भागे। आंधी में घोड़े बेकाबू होकर भाग उठे। हमारे लिए सराह में कोई पनाह नहीं थी। हम आंधी और घोड़ों के रहमो करम पर थी। पहले एक लड़की गिरी। मैंने इसे घोड़े के नीचे आते देखा। फिर दूसरी लड़की घोड़े से गिरी तो पाँव रकाब में फंस जाने की वजह से घोड़े ने इसे 2 मील से ज़्यादा फासले तक घसीटा। इसकी चीखें मेरा जिगर चाक कर रही थीं। मैं अब भी इसकी चीखें सुन रही हूँ। जब तक ज़िंदा रहूँगी ये चीखें सुनती रहूँगी। फिर वो लड़की लाश बन गई। मेरा घोड़ा साथ साथ दौड़ा आ रहा था, मगर मेरे काबू में नहीं था। वो लड़की भी अपने घोड़े के साथ पीछे रह गई। अब मैं अकेली थी। मुझे खुदा ने 2 लड़कियों को मारकर बता दिया था कि मेरा अंजाम क्या होगा। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और शौक थी। इनमें हुस्न का गरूर भी था। उन्होंने भी बादशाहों को उंगलियों पर नचाया था, मगर ऐसी भयानक मौत मरी कि किसी को खबर तक न हुई। अब वो रेत की गुमनाम कब्रों में दफन हो गई हैं। मैं अकेली रह गई। आंधी के सन्नाटे मौत के कहके बन गए। मुझे अपने सर के ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं चड़ेलें, बदरूहें, भूत और मौत के कहके सुनाई दे रहे थे। मैं बुद्धू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। दिमाग रोशन है। मैंने जान लिया कि खुदा मुझे गुनाहों की सज़ा दे रहा है। ऐसी हैबतनाक मौत और ऐसी हौलनाक आंधी वो तुमने भी देखी है। मुझे खुदा याद आ गया। मैंने खुदा को बुलंद आवाज़ से पुकारा, रो रो कर गुनाहों से तौबा की और माफ़ी मांगी। फिर मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो मैं तुम्हारे कब्ज़े में थी। तुम्हारी गोरी रंगत देखकर मैं खुश हुई कि तुम यूरोपी हो और मैं फ़लस्तीन में हूँ। इस धोखे में मैंने अपनी ज़बान में पूछा था कि क्या मैं फ़लस्तीन में हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मुसलमानों के कब्ज़े में हूँ तो मेरा दिल बैठ गया। मैं आंधी से बचकर अपने दुश्मन के कब्ज़े में आ गई थी। मुसलमानों के मुतल्लक मुझे बताया गया था कि औरतों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सलूक किया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। तुमने सोना ठुकरा दिया। तुमने मुझे भी ठुकरा दिया। मैं इस कदर खौफज़दा थी कि मैं कहती थी कि ख्वाह कोई मिल जाए मुझे पनाह दे दे और मुझे सीने से लगा ले। तुम्हारे मुतल्लक मुझे अभी तक यकीन नहीं आया था कि तुम्हारा किरदार पाक है। मुझे ये तवक्को थी कि रात को तुम मुझे परेशान करोगे। मैं ख्वाब में भी मगरमच्छों, हबशियों और आंधी की दहशत देखती रही।
मैं डर कर उठी तो तुमने मुझे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह मुझे कहानियाँ सुनाकर मेरा खौफ दूर कर दिया। और जब रात गुजर गई तो मैंने जागते ही तुम्हें खुदा के आगे सजदे में देखा। तुमने जब दुआ के लिए हाथ उठाए और मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और मुसर्रत देखी थी, इसने मेरे आंसू निकाल दिए। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ये सुकून तुम्हें किसने दिया है। मैं तुम्हारे वजूद से इतनी मुतासर हुई कि मैंने तुम्हें धोखे में रखना बहुत बड़ा गुनाह समझा। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक़ हर बात बता दूंगी। इसके और मुझ पर किरदार और ये सुकून दे दो और मेरे दिल से वो दहशत उतार दो जो मुझे बड़ी ही तलख़ अज़ियत दे रही है। मगर तुमने मेरी बात न सुनी। तुम्हें फ़र्ज़ अजीज़ था। इसने अहमद कमाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम शायद इसे भी धोखा समझो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकूंगी। मैंने कल तुम्हें गुनाह की दावत देते हुए कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझो, मगर अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे कदमों में बैठी रहूंगी। मुझे अपनी लौंडी बना लो और इसके औज़ मुझे वो सुकून दे दो जो मैंने नमाज के वक्त तुम्हारे चेहरे पे देखा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अहमद कमाल ने कहा, मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी कौम को, अपनी फ़ौज को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अमानत हो, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो मेरा फ़र्ज़ था। ये फ़र्ज़ इस वक्त ख़त्म होगा जब मैं तुम्हें मुतल्लिक़ा महकमे के हवाले कर दूँगा और वो मुझे हुक्म देगा कि अहमद कमाल तुम वापस चले जाओ। वो इसे धोखा नहीं दे रही थी। इसने रोते हुए कहा, तुम्हारे हाकिम जब मुझे सज़ाए मौत देंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़े रखना। अब यही एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कहूँगी कि मुझे फ़लस्तीन पहुँचा दो। मैं तुम्हारे फ़र्ज़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगी। मुझे सिर्फ़ इतना कह दो कि मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूँगी कि मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ। मुझे तरबियत देने वालों ने पत्थर बना दिया था। मैं ये भी समझती थी कि मेरे अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन खुदा ने मुझे बड़े ही परहोल तरीके से समझा दिया कि इंसान पत्थर नहीं बन सकता और एक ना एक दिन मजबूर होकर किसी से पूछता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। अहमद कमाल ने इससे पूछा, तुम जैसी लड़कियों को हमारे मुल्क में भेजकर इनसे क्या काम लिया जाता है? बहुत से काम कराए जाते हैं, लड़की ने जवाब दिया। बाज़ को मुसलमान अमरा के हरमों में मुसलमानों के रूप में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ वो तरबियत के मुताबिक अमरा और वज़रा में गालिब आ जाती हैं। इनसे स्लेब के पसंद के अफराद को ओहदे दिलाती हैं। जो हाकम स्लेबियों के ख़िलाफ़ हो, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कराती हैं। मुसलमान लड़कियां इतनी चालाक नहीं होती। इन्हें खूबसूरती पर नाज होता है। वो हरमों के लिए मुंतखब तो हो जाती हैं, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की इन्हें बेकार करके अपना ग़ुलाम बना लेती है। इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों, वज़ीरों और किलादारों की आधी तादाद के फ़ैसले मेरी कौम के हक़ में होते हैं। लड़कियों का एक ग्रोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं। इनका काम यह है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार ख़राब करती हैं। इनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती और शरीफ घरानों की लड़कियों और लड़कों के मुआशके कराती हैं। मुझ जैसी स्लेबी लड़कियां चोरी छुपे तुम्हारे ऐसे हाकिमों के पास आती हैं जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। इन हाकिमों को सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों को हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिनसे इन पर ज़रा सा शक भी नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान
رکابت اور غلط فہمیاں پیدا کرتیں اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف ناپسندیدگی پیدا کرتی ہیں۔ مجھ 2 لڑکیوں کے ساتھ اسی کام کے لیے رجب کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اس صلیبیوں کی درپردہ کارروائیوں اور مسلمانوں کی ایمان افروشی کی تفصیل سنا رہی تھیں اور احمد کمال سن رہا تھا۔ جاری ہے۔ Mm-hmm.